बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 5 and it's the period of English language teaching. It's the 6th and last video of week number 7. Today these topics to be described: application, what is an application and how to write an application, what is paragraph and how to write a paragraph, invitation, and in the language portion we will focus about the listening. So before starting my lecture, I will give the short review of my previous lecture. That in the previous lecture I had taught you about tenses, and in the tenses I had taught you about present continuous, past continuous and future continuous. First I will review the home task which I had given you in the last video. In the last video I had given you a sentence, and from this sentence you had to make 9 sentences. I had given a sentence that as I had told you that in the previous lecture I had taught you about the tenses which are present continuous, past continuous and future continuous, and I had given you the sentence हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं. First I will give the review of the home task. This is the tense of present continuous. हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं. This is the positive sentence. We are waiting for them. The negative sentence of this sentence, हम उनका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं. We are not waiting for them. क्या हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं? Are we waiting for them? नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे. वी वर वेटिंग फॉर देम. हम उनका इंतज़ार नहीं कर रहे थे. नेगेटिव सेंटेंस, वी वर नॉट वेटिंग फॉर देम. क्या हम उनका इंतज़ार कर रहे थे? वर वी वेटिंग फॉर देम. एंड इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, क्या हम उनका इंतज़ार कर रहे होंगे? विल वी बी वेटिंग फॉर देम. क्या हम उनका इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे? वी विल नॉट बी वेटिंग फॉर देम. क्या हम उनका इंतजार कर रहे होंगे? विल वी बी वेटिंग फॉर देम. दिस वॉज द योर होम टास्क. नाउ लेट्स मूव टू आवर न्यू टॉपिक्स. That what is an application? An application is a request to some authority for grant or sanction of something. दरख्वास्त में किसी बड़े मर्तबे वाली हस्ती से कोई इजाज़त या मंजूरी अता करने की गुजारिश की जाती है. इट इज़ सिमिलर टू अ लेटर. इसका अंदाज एक खत से मिलता जुलता है. जस्ट लाइक अ लेटर इट हैज़ सैल्यूटेशन, कंटेंट एंड सब्सक्रिप्शन. खत की तरह दरख्वास्त में भी अलकाब, नफ्स मजमून और अख्तामिया होता है. नाउ हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन. एक एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से लिखी जाती है. पैटर्न ऑफ एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का पैटर्न. वी विल डिस्कस अबाउट पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन. सिंस एन एप्लीकेशन इज एड्रेस टू समबडी हायर इन स्टेटस और रैंक. चूंकि दरख्वास्त किसी मोहतरम हस्ती के सामने पेश की जाती है, देयरफॉर सैल्यूटेशन मस्ट कंटेन रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर दैट पर्सन. इसीलिए अलकाब में एहतराम और इज्जत का तासुर लाजिम है. सो फर्स्ट we will give the reference of that person to. We will start the application with to, which we are giving the application of that person. After that, comma, to the
if we are giving the application to an principal, to a principal, so we will give the reference to the principal. Now we will give the reference of that post. After that comma, the principal, Bright Career School, comma, after that comma, Karachi, then full stop. It is the starters of the starter of an application. Now we will give the subject. Subject means what is the matter of an application. In a subject we will give the topic of an application. Then we will start the salutation. Salutation means respected sir, or we can say respected madam. It is the salutation of an application. The opening sentence of the application should contain expression of regard. दरख्वास्त का पहला जुमला जो है वो नहायत अदब और एहतराम के साथ लिखना चाहिए. आई एम राइटिंग हेयर सम सेंटेंसेस दैट with due regards, or we can say with due respect. I beg to say that. This is the opening sentence of an application. With due regards या with due respect, I beg to say that. I beg to state that. Second sentence, it may be it is submitted to your honor that. It is submitted to your honor that. Next, with due compliment, with due compliments, it is submitted that. These are the starting opening sentence of an application. What's the meaning of these sentences? That नहायत अदब और एहतराम के साथ मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहती हूँ, ये अर्ज करना चाहती हूँ कि, या फिर नहायत अदब और एहतराम के साथ मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि. दिस इज द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ एन एप्लीकेशन. नाउ नेक्स्ट टू दिस पार्ट, you can write any one sentence in your opening application. That after that you will complete the paragraph which you are writing the application on that topic. And next paragraph, what will be the I shall be very thankful to you for this act of
काइंडनेस, दिस इज द लास्ट टेंस ऑफ द पैराग्राफ. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. मैं आपकी इस मेहरबानी की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होंगी या मैं आपकी इस मेहरबानी का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होऊंगा. दिस इज द कंटेंट, दिस इज द कंटेंट ऑफ एन एप्लीकेशन. नाउ in the same way the subscription should express feelings of humbleness and respectfulness on the part of the applicant. इसी तरह इख्तितामी कलमात से भी दरख्वास्त गुजार की जानिब से आजिज़ी और अदब का इजहार होना चाहिए. मतलब लास्ट एंडिंग जो है एप्लीकेशन की वो भी आपकी रेस्पेक्टफुलनेस होनी चाहिए. जस्ट लाइक ऑन द योर्स obediently, then comma yours obediently, आपका फरमाबरदार या आपकी फरमाबरदार. the first respected sir, it's called the salutation. ये salutation कहलाता है एप्लीकेशन में. and this part is called the content of an एप्लीकेशन. एप्लीकेशन का ये कंटेंट कहलाता है. एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड द सब्सक्रिप्शन. एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन पार्ट कहलाता है. सो सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन मस्ट बी प्रॉपरली पंक्चुएटेड. सैल्यूटेशन जो है और सब्सक्रिप्शन जो है एक एप्लीकेशन में पंक्चुएटेड जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए. इट मीन्स दैट कॉमास एंड फुल स्टॉप्स शुड बी प्लेस्ड प्रॉपरली. इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट कॉमास और फुल स्टॉप जो यूज किए गए हैं वो बिल्कुल सही पंक्चुएट होने चाहिए. दिस इज द पैटर्न ऑफ एन एप्लीकेशन. नाउ कम टू योर सॉल्यूशन. फर्स्ट पैटर्न ऑफ एन एप्लीकेशन विच आई हैव डिस्कस्ड. एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर पिकनिक टूर. पिकनिक टूर के लिए अपने प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन लिखनी है. फर्स्ट टू द प्रिंसिपल ब्राइट कैरियर स्कूल जमानाबाद लांडी कराची. देन परमिशन फॉर पिकनिक टूर. पिकनिक टूर के लिए परमिशन के लिए आपने एप्लीकेशन लिखी है. रेस्पेक्टेड सर और यू कैन से रेस्पेक्टेड मैडम. विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से स्टेट दैट वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. मुदबाना गुजारिश अर्जी है कि हम क्लास 5A के तालिब इल्म हैं इन योर स्कूल, आपके स्कूल में. एंड वी वांट योर परमिशन फॉर पिकनिक टूर. और पिकनिक टूर के लिए हम आपकी परमिशन चाहते हैं. काइंडली ग्रांट अस परमिशन फॉर पिकनिक टूर. बराए मेहरबानी हमें पिकनिक टूर की इजाजत दे दीजिए. वी शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. हम आपके इसके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार, इस मेहरबानी के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होंगे. देन यू विल राइट द थैंक यू. आफ्टर दैट कंप्लीटिंग द पैराग्राफ you will write the thank you yours obediently. Then you will write here your name. Yours obediently you will write your name just like Ahmad, Zara. Next class 5th A, 5th B, 5th C. And the last we will put the date. So today date is 8th January 2021. So pattern, I think you will have got the pattern and the how to write an application and picnic tour application. Now come to your next topic, paragraph. Just as a sentence is the combination of words. जिस तरह से एक जुमला जो है वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, इन द सेम वे आ पैराग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस. इसी तरह से एक पैराग्राफ जो है वो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है. जस्ट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर. जिस तरह से एक वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है एक सेंटेंस में बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, इन द सेम वे बिल्कुल इसी तरीके से सेंटेंसेस इन आ पैराग्राफ शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर. तो पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो भी प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस की अरेंजमेंट कहलाती है. आई एम राइटिंग हेयर सम वर्ड्स.
I have written some words. Beloved is our Pakistan homeland. This is the words. Now I will make a sentence with the combination of these words. That these words may form a sentence. इन वर्ड्स की मदद से जो है एक सेंटेंस फॉर्म हो सकता है. इफ यू पुट देम टुगेदर इन प्रॉपर ऑर्डर, अगर हम इन वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में तरतीब दें. सो वी पाकिस्तान इज आवर बिलव्ड होमलैंड, पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है. सो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स वी मेड अ सेंटेंस. वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हमने क्या बनाया है? सेंटेंस. दैट्स लाइक विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस वी मेक अ पैराग्राफ. इसी तरीके से हम सेंटेंसेस के मिलाप से जो है वो एक पैराग्राफ बनाते हैं. द पैराग्राफ ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैराग्राफ का जो बिगिनिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट शुड कंटेन द बेसिक और टॉपिकल थॉट. ये जो है मुश्तमिल होना चाहिए बेसिक और टॉपिकल थॉट पर मुश्तमिल होना चाहिए, टॉपिक के रिलेटेड ही बात हो रही हो. एंड द सेंटेंसेस शुड बी लिंक्ड विद वन अनदर, और उसमें जो सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे से लिंक करते हुए होने चाहिए. नाउ कम टू द एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ. एलिमेंट्स मीन्स पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ. के एक पैराग्राफ के कितने पार्ट होते हैं? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ. सब्जेक्ट सेंटेंस. व्हाट इज सब्जेक्ट सेंटेंस? इट रेफर्स टू द टॉपिक. सब्जेक्ट सेंटेंस में जो है किसी भी टॉपिक को रेफर किया जाता है, किसी भी वन टॉपिक को रेफर किया जाता है. इट मीन्स अ पैराग्राफ शुड बी अ सिंगल सब्जेक्ट. के पैराग्राफ जो है वो एक सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल टॉपिक का होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ थॉट. ये क्या कहलाता है? यूनिटी ऑफ थॉट कहलाता है कि जिसके एक ही टॉपिक पर, जिस पैराग्राफ पर बात हो रही होती है. नाउ सेकेंड इज बॉडी सेंटेंस. व्हाट इज बॉडी सेंटेंस? एक्सप्लेन द टॉपिक इन 2 or 3 सेंटेंसेस. उस टॉपिक को 2 या 3 सेंटेंसेस में डिफाइन करना, और मे बी मोर देन 2 or 3 सेंटेंसेस. इट मीन्स द सेंटेंसेस शुड बी रिलेटेड टू वन अदर. इसका मतलब ये है कि इसमें जो सेंटेंस है वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए. अ पैराग्राफ शुड बी अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस. एक पैराग्राफ जो है वो एक सेंटेंसेस की सीरीज होनी चाहिए. नाउ द थर्ड इज कंक्लूडिंग सेंटेंस. कंक्लूडिंग सेंटेंस मीन्स इख्तितामिया जुमला. लीड्स द टॉपिक, जो कि टॉपिक को लीड करें, एंड इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, और इसका वो एक लॉजिकल कंक्लूजन दे. इट मीन्स द क्लाइमैक्स विच इज द हाईएस्ट. जो क्लाइमैक्स होता है, लास्ट का पार्ट जो होता है एक पैराग्राफ का, वो हाईएस्ट होना चाहिए. और मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द लास्ट सेंटेंस. और बहुत ही अहम पॉइंट जो है वो लास्ट सेंटेंस में एक्सप्रेस होने चाहिए, वाज़े होने चाहिए. इट मेक्स द पैराग्राफ इफेक्टिव और एंड इम्प्रेसिव. ये पैराग्राफ को क्या करता है? एक इफेक्टिव बनाता है और एक इम्प्रेसिव बनाता है. इन शॉर्ट, अ पैराग्राफ, अ गुड पैराग्राफ शुड बी ब्रीफ. एक पैराग्राफ जो है, एक अच्छा पैराग्राफ जो ब्रीफ होना चाहिए, वाज़े होना चाहिए, एंड सेंटर्ड ऑन द सब्जेक्ट, और उसको सब्जेक्ट का सेंटर होना चाहिए. सेंटेंसेस शुड बी प्रॉपरली अरेंज. जिसमें सेंटेंसेस जो है वो प्रॉपरली अरेंज्ड हुए होने चाहिए. नाउ कम टू योर सॉल्यूशन. पैराग्राफ ऑन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. हजरत पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैराग्राफ है. हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं. ही वॉज बोर्न एट मक्का इन 571 AD. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 AD मक्का में पैदा हुए. हिज फादर हजरत अब्दुल्ला हैड डाइड बिफोर ही वॉज बोर्न. आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था. ही वॉज ब्राउट अप बाय हिज मदर बीबी आमना. फिर आपकी परवरिश हजरत बीबी आमना ने परवरिश की. देन ही वॉज ब्राउट अप बाय हिज लविंग फादर हजरत अब्दुल मुत्तलिब. फिर आपको अपने प्यारे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपर्द कर दिया गया. ही वॉज अ चीफ ऑफ कुरैश. आप जो हैं वो कुरैश के सरदार थे. बट व्हेन ही डाइड आफ्टर 8 years, लेकिन उनकी रहलत के बाद 8 साल बाद हिज अंकल अबू तालिब अंडरटूक अ लुक आफ्टर हिम. आपके चचा हजरत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली. अ फ्यू डेज आफ्टर हिज बर्थ, आपकी पैदाइश के कुछ दिन बाद, द चाइल्ड वॉज पुट अंडर द केयर ऑफ अ नर्स. हजरत हलीमा सादिया, आपको हजरत हलीमा सादिया की उसमें परवरिश में दे दिया गया. आर होली प्रॉफिट वॉज वेरी काइंड एंड जेंटल. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत
मेहरबान और बहुत मोअज़्ज़िज़ थे। ही वॉज लव्ड बाय द पीपल, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। पीपल कॉल्ड हिम सादिक एंड अमीन, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे। ही इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक अजीम मिसाल हैं। आर होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पास्ड अवे व्हेन ही वाज 63, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 की एज में ही विशाल फरमा गए थे। ही सेक्रेड टॉम इन मदीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना में है। ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। दिस इज द पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ। नाउ दिस टॉपिक वाइंड्स अप हियर पैराग्राफ। नाउ कम टू थर्ड वन टॉपिक, इन्विटेशन। नाउ व्हाट इज एन इन्विटेशन? एन इन्विटेशन इज द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इन्विटेशन जो है, इन्विटेशन मीन्स दावतनामा। इन्विटेशन जो है वो एक रिटन कम्युनिकेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन की सूरत में होता है। दैट इन्वाइट्स द रिसीवर, जो कि रिसीवर को इन्वाइट करता है। दैट इन्वाइट्स द रिसीवर, जो रिसीवर को इन्वाइट करता है टू एन इवेंट, किसी भी एक इवेंट में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्विटेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्विटेशन, फॉर्मल इन्विटेशन एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन इट इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ एन इन्विटेशन कार्ड। फॉर्मल इन्विटेशन जो है वो एक रिटन कार्ड की सूरत में लिखा जाता है। एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन इट इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ लेटर। इनफॉर्मल इन्विटेशन जो है वो एक लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, एक लेटर की सूरत में लिखा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्विटेशन लेटर, दैट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इन योर बुक on page number 245, this is formal invitation and this is informal invitation. Now come to your solution. There are two invitation in your solution, formal and informal. Formal invitation, write a formal invitation to any school for annual result. Annual result के लिए आपने formal invitation लिखना है. First you will write the patron, you will make the patron of that invitation card, just like this. You will make the patron and your invitation card should be in that one page. Bright Career School cordially invites to you to our annual result ceremony. Annual result ceremony के लिए invite आपको किया जाता है on 30th June 2021 10 AM to 2:30 PM Zamanabad 36B Landi number 4 Karachi. This is the address. Your presence at this grand event is our pride. आपकी आमद हमारे लिए काबिल फखर होगी. This is the formal invitation. This is in the form of a card. And now informal invitation. Informal invitation question is, you are celebrating the first birthday of your little sister. आप जो है अपनी छोटी सिस्टर की जो है फर्स्ट बर्थडे मनाने जा रहे हैं. राइट एन एप्लीकेशन टू योर बेस्ट फ्रेंड. अपने बेस्ट फ्रेंड को आपने इन्विटेशन लिखना है. इन्वाइटिंग हिम और हर फॉर द ओकेजन, और उसे ओकेजन के लिए आपने क्या करना है, इन्वाइट करना है. दिस इज द इनफॉर्मल इन्विटेशन. दिस इज द फॉर्म ऑफ अ लेटर. फर्स्ट यू विल राइट योर नेम. Ahmad, you can what your name? You will write here your name. Bright Career School. Then you will write the address, Zamanabad area 36B, Landi number 4, Karachi. Then you will write the date, dear your friend name. You will write dear Ali in the place of your friend name. I am glad to inform you that, मुझे आपको ये बताकर खुशी महसूस हुई है कि the first birthday of my little sister, कि मेरी लिटिल सिस्टर की फर्स्ट बर्थडे हैज बीन फिक्स्ड फॉर द 10th of January 2021. 10 जनवरी 2021 को होना करार पाई है. वी आर कोर्डियली इन्वाइटेड टू अटेंड द स्पेशल ओकेजन टू ब्लेस हर. आपको खास तौर पर मधु किया जाता है इस स्पेशल ओकेजन के लिए कि आप उसे ब्लेस करें, उसे दुआ दें. योर्स अफेक्शनेटली, आपकी मोहब्बत का तालिब. देन यू विल राइट योर नेम इन द लास्ट. दैट formal and informal invitation. Now let's move to our language listening focus. Now come to your language portion. This is the listening focus. As you know that listening brings improvement in our understanding skills as well as in our
speaking skills. So listening is the main part of our speaking, writing or communicating to each other. This is the written work in your ELD subject, not oral. So there are two listenings. First I am reading the listening number 1. Listen and choose A और B. Listen, आपने listen करना है, ट्रांसक्रिप्ट को listen करना है, उसके बाद आपने choose करना है which one option is right. There are 3 characters in this listening: Mike, Phoebe, Rose. Mike has been playing for 5 years. Mike जो है वो क्या 5 years से playing कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या फिर has won the school championship, या फिर उन्होंने school championship जीती है. Phoebe has taken up his sport recently. Phoebe ने जो है recently ही sport ज्वाइन किया है, या फिर was hurt during the match, या फिर वो मैच during मैच जो है वो हर्ट हुई है, जख्मी हुई है. Rose joined the team 6 months ago. Rose ने जो है वो 6 month पहले ही टीम ज्वाइन की है, या फिर doesn't want to be captain, या वो कैप्टन बनना नहीं चाहती. So I am reading the transcript. You have to find the answers with the help of transcript. I am reading for the mic. I am reading for the about the mic. I usually play at the school court with my mates. I started playing when I am 5 years old. My dad bought me a racket for my birthday, and that was it. I was hooked. I am probably not the best player at school, but I always play well in competitions. In the school championship, I played in the final with my best mate Glenn. It was a great match. I won in the end. So which one option is the right? That he was playing for 5 years. Yeah, he has won the school championship. So he has won the school championship. He has joined when he was 5 years old. Now come to the Phoebe. Last night's match was really exciting. We scored a goal in the last minute to win. It was raining for most of the game, so the pitch was very wet and it was hard to play. Well, it was for some of the other girls who haven't been playing long. I don't know if I can play in the next match because I am injured. A girl from the other team hit me in the leg with her stick. It's all part of the game though, I suppose. So what's the option is right? Was hurt during the match because a girl has hit in his leg. Now come to the Rose. My team wasn't very good at the beginning of the year, but they are getting much better. I am the captain, so I have to organize practice. Make sure the court is free. Put up the net, the sort of things. I've only been in the team for 6 months, but nobody else wanted to be captain, so I had to. I quite enjoy it. To be honest, I try to make all our players work together as a team. It's not enough having lots of tall players who can jump high and hit hard. If you don't play as a team, you will never win. So what did you guess? Which one option is right? This one, A option is right. Joined the team 6 months ago. 6 months पहले ही उसने team join की थी. Now come to the second listening. I am reading the transcript of the second listening. First, listen to two TV presenters जो है TV presenters जो है आपस में टॉकिंग कर रहे हैं एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो. आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. द फर्स्ट वन, जेम्स कोगन वॉज किडनैप्ड डेज अगो. जेम्स कोगन जो है वो कब किडनैप हुआ था? द किडनैपर्स एस्क्ड फॉर. किडनैपर्स ने मांगे थे, क्या मांगे थे? यूरो मांगे थे. वो कितने यूरो मांगे थे वो बताना है. दे किडनैप जेम्स कोगन इन. उन्होंने जेम्स कोगन को किडनैप करके कहाँ रखा था? सर्कस में. वो बताना है. 4 में डैश सेव द बॉय. बॉय को जो है किसने सेव किया, किसने बचाया? द पुलिस हैव अरेस्टेड ऑफ द किडनैपर्स सो फार. पुलिस ने कितने किडनैपर्स को अरेस्ट किया? दिस इज द सेकंड लिसनिंग एंड आई एम रीडिंग द ट्रांसक्रिप्ट. देयर आर 2 पर्सन, फ्रेड एंड फियोना. Fred and Fiona. Fiona is saying, now let's see what Fiona Robert has for us.
Any amazing story, Fiona? Good morning, everyone. I'm sure you all heard about the 12 years old boy who was kidnapped 3 weeks ago. So, boy was kidnapped 3 weeks ago. James Cogan was kidnapped 3 weeks ago. James Cogan, yes, he was kidnapped while playing in a park near home. And if I remember correctly, the kidnappers have asked for 1 million euros, a lot of money, 1 million euros. The kidnappers asked for euro 1 million. You can write any one option in your blank. 1 million in the words or in counting. Now let's move. Correct, but that's all over now. He's back with his family as we speak. What? The police found him? Well, not exactly the police, but let me start from the beginning. The kidnappers worked for Mega Circus. You know, the one that's been in town for over a month. They kidnapped for the boy and were keeping in there tied up in a tent. They keep in a tent. They kept James Cogan in a tent. उन्होंने जेम्स कोगन को किस में रखा? टेंट में रखा, एक सर्कस में. Now that's new. Okay, so if the police didn't find James, who rescued him? Someone from the circus. Exactly, Mandy was wandering around last night as usual. Heard the boy crying and helped him free himself from the ropes. Mandy, let me guess. Is she the circus clown? An acrobat? Actually, she is a monkey. So, who saved the boy? Mandy. And who is Mandy? A monkey. You can write any one option. You can write any one option in your blank. Monkey or a monkey or Mandy. I would never have guessed that an animal would free that poor boy. Yes, it's unbelievable. Anyway, James left the circus with Mandy on his shoulder at 5 a.m. and tried to find his way home. Even though he was very weak, luckily a police car was driving past and stopped. James explained what had happened. The officers called his parents and took him to hospital. What about the kidnappers? Well, James described the 3 kidnappers, but up until now the police have caught only 2 of them. However, they seem to believe that more people from the circus are involved in the kidnapping. So, luckily not for the kidnappers. So, the police have arrested 2 of. There are 3 kidnappers in this story, but the police have arrested only 2 of the kidnappers. So, listening winds up here. Now come to your home task. That write an application to your principal for 15 days leave to perform umrah. अपने principal को application लिखें 15 days की to perform umrah. And the second one, diary, write a paragraph on exercise number 3, which is on page number 239. This one paragraph you will have to write in your home task. Exercise number 3, write a paragraph about your favorite book. अपनी favorite book के बारे में आपने paragraph लिखना है. Give information about what you like in it and why your friend should read it. You have to paragraph this on your favorite book. Now write an informal invitation number 2 on page number 246. Informal invitation number 2. You will celebrate your birthday soon and intend to give a party on the following Sunday. Write an invitation to your classmates asking them to join you for fun and food in the party. You have to do this work in your home task, application, paragraph and informal invitation. So today's lecture winds up here. We will meet again with the review of all content.
If you have got any problem, so watch this video and again, so take care and Allah Hafiz.